جب 1-2 دن گزرے وہ اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا, ادھر ڈاکٹر نے کہا میں نے تو اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا تھا, اسے بچی بتائی تھی. اس کا ویڈیو بھی ان لوگوں نے جب مجھے بیچا ہے اس میں جس کو بھی دکھا دو وہ بولے گا کہ یہ نہیں ہے. السلام علیکم, جی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں بشرا قمر. ناظرین, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں 5 دن کے اندر ایک بچہ نرسری میں بچی بن جاتا ہے. اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دی کہ ایک بچے کو جو ہے 5 دن قبل ان کے اہل خانہ انتہائی نگہداشت کی نرسری میں, نجی نرسری میں داخل کرتے ہیں, لیکن 5 دن بعد انہیں کال آتی ہے کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو چکی ہے, اسے لے جائیں. جس پر والدین جو ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ 5 دن قبل ہم نے تو اپنا بچہ داخل کیا تھا, یہ بچی کیسے بن گئی. بچے کے جو والد ہیں وہ ہمارے ساتھ نظام الدین صاحب موجود ہیں. نظام الدین صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بچے کی جو والدہ ہیں ان کی ڈیلیوری کس ہسپتال میں ہوئی تھی؟ سول ہاسپٹل. کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 7 تاریخ 3 تاریخ 3 تاریخ کو ڈیلیوری ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب بچہ آپ کے پاس دیا جاتا ہے تو اس بچے کی حالت کیسی تھی؟ حالت اس نے بولا کہ وینٹ پہ لگا دو خود بخود صحیح ہو جائے گا. پھر میں نے ادھر ہی سیلپ لے گیا, سیلپ سے الشفا اس میں لے گیا. جب اس میں ادھر بھی خود گیا, اس کو بولا کہ ایک لڑکا میرے ساتھ بھیجو, وہاں سے میں نے بچہ لانا ہے. تو ان لوگوں نے لڑکا بھیجا ہے میرے ساتھ. میں لڑکے کو ادھر ہی لا کے ادھر ہی اسی ٹائم پہ میں نے پائل بھی بنایا, اور اس نے خود رسید بنایا, اس میں میل خود اس نے لکھا ہے, اور سب کچھ پیس بھی میں نے اسی ٹائم جمع کیا ہوا ہے. پھر اس نے بولا کہ بس تم ایسے کرو 11 بجے تک ہمارے سے الاول کرو, کیونکہ 11 بجے میں نے اس کو ایونٹ سے نکالنا ہے. پھر میں نے 11 بجے جب اس کو کال کیا, اس نے بولا ابھی تک تو نہیں نکالا ہے, آپ ایسے کرو 3 بجے تک خود آ جاؤ. 3 بجے میں گیا, اس نے ایونٹ سے نکالا تھا ہمارے پیشنٹ کو, اور اس پھر شیشے میں رکھا ہے. جب شیشے میں رکھا ہے تو میں نے شیشہ تصویر ویڈیو بھی سب کچھ بنا کے پھر میں گیا ہوں. اچھا, آپ یہ بتائیں نظام الدین بھائی کہ جب آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے سول ہسپتال میں, تو سول ہسپتال کی انتظامیہ اس بچے کو سول ہسپتال کی نرسری میں کیوں نہیں رکھتی؟ کیا ایکسکیوز دیا انہوں نے؟ وینٹ نہیں تھا ادھر, تو میں نے 2-3 جگہ اور بھی پوچھا تھا, وینٹ نہیں تھا. تو پھر میں جب ادھر آیا, ادھر اس کے ساتھ وینٹ خالی تھا. ویسے دوسرا جگہ بھی تھا, ادھر وینٹ پہ بچے اور بھی تھے. تو میں جب اس کے پاس آیا, اس نے بولا وینٹ خالی, تو پھر اس کو میں نے ساتھ لے کے آیا. بچی کے والد بھی یہاں موجود ہیں, محمد اعظم, ان سے بھی جان لیتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کی بچی کب پیدا ہوئی, کس ہسپتال میں ہوئی, وہاں پر کون موجود تھا, آپ تھے یا آپ کے بھائی تھے؟ میں وہاں پہ موجود تھا. میں گیا تھا, میرے ساتھ ایک اور میرا کزن تھا. میم ہم 4 بجے گھر سے نکلے تھے, 6 سے پہلے قبل ڈلیوری ہو گئی تھی. 6 بجے میں بچے کو نرسری لے گیا تھا. جب بچے کو ڈلیور ہو گیا, مجھے دے دیا. بچہ یا بچی؟ بچی جب ڈلیور ہو گئی مجھے دے دیا انہوں نے جیسے نا, تو وہ اسے کلین بھی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ اب اسے جلدی سے نیچے سیلف لے جائیں تاکہ جو ہے نا اس کی حالت سیٹ ہو. میں وہاں پہ لے گیا, انہوں نے اسے نا تھوڑا سیٹ کیا. مجھے کہا آپ جاؤ وینٹ کی جو ہے نا بندوبست کرو, وینٹ چاہیے لازمی اس کے لیے, وینٹ کے بغیر جو ہے نا بچی نہیں ہے نا. میں بھاگا باہر, اکیلا تھا, وینٹ کے لیے گیا, واپس آیا, بچی تھوڑا سا نارمل ہو گئی تھی. بچی کو اٹھایا, سلنڈر اٹھایا, میں گیا بچی کو نرسری میں ایڈمٹ کرا دیا. پھر واپس آیا کیونکہ میں اکیلا تھا, پیچھے میری سسٹر بھی تھی, اس کی طبیعت بھی میں نے دیکھنی تھی. واپس میں آ گیا, سسٹر کو دیکھا, اس کو بلڈ لگنا تھا, تو اسی میں ٹائم لگا. میں پھر سے گھر پہنچایا, پھر میں چکر میں خود بھی لگایا تقریباً 11 بجے واپس ادھری نرسری. پھر انہوں نے کہا ہم ٹیسٹ کریں گے, آپ 3 بجے آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. 3 بجے میں نے اپنے بھائی کو بھجوا دیا, وہ گیا وہاں پہ ٹیسٹ بھی کروایا انہوں نے, واپس بھی آ گیا. پھر مجھے لگا کہ انہوں نے وینٹ کا کہا ہے, لیکن وینٹ پہ انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے بچی کو ابھی تک نا. تو میں نے کہا میں اپنی بچی کو یہاں سے لے جاؤں گا ایک دوسری نرسری میں, وہاں پہ وینٹ پہ رکھواؤں گا. تو میں شام کو گیا, رات کو وہاں پہ تقریباً 9 بجے کے ٹائم میں نے اپنی بچی اٹھائی. میں گیا ادھر دوسری نرسری میں, بچی کو ایڈمٹ کرایا. اس سے مطلب ایک رات گزر گئی. رات کو جو ہے نا 1 بجے پھر کال آئی میں نرسری کہ آپ کی بچی کی طبیعت خراب ہے نا. خیر ہم نے کہا وینٹ پہ لگا دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, وینٹ پہ لگا دو, ہم چارجز دے دیں گے. صبح ہو گئی, ہم گئے شام کو, انہوں نے کہا یار ابھی آپ کا بچہ ایکسپائر ہو گیا, آپ لے جائیں. ہم بچہ لے. اچھا, آپ پہلے یہ بتائیں جو بچی آپ کی انہوں نے وینٹ پہ رکھی اس پہ کوئی ٹیگ لگایا؟ کچھ بھی نہیں لگایا ہوتا میم, نہ ٹیگ لگایا ہوتا. حالانکہ ہماری جو فائلز ہیں نا میری اور اس بھائی کی, ان پہ ابھی میری جو ایف لکھا تھا, فیمیل لکھا تھا, اس کو ایم کر کے میل کر دیے, اور ان کی جو میل تھا ان کو ایم کو کاٹ کے ان کو انہوں نے ایف کر دیا ہے. جب آپ کو کال آئی تو آپ کے بچے کی یا بچی کی کنڈیشن کیا بتائی انہوں نے؟ انہوں نے کہا اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ہاں تو سیریس ہے بہت زیادہ. اس کے بعد آپ کو آخری کال پہ کیا بتایا گیا؟ یہی میڈم ایک ہی کال انہوں نے کی مجھے, بس ایک ہی کال انہوں نے کی. پھر جب میں بچہ گھر لے گیا ایکسپائر, جب انہوں نے گھر والے نے کھولا, انہوں نے کہا یار یہ تو جو ہے لڑکا ہے, ہماری تو لڑکی تھی. میں نے کہا چلو میں
पूछता हूँ दोनों नर्सियों से, मैंने कंफर्म किया, बोलते नहीं हमारा आपका लड़का ही था, हमारे पास भी लड़का है। उसने कहा मेरे पास भी लड़का है, लड़की हमारे पास आपने नहीं लाया, उसने आप नहीं लाया ना। मैंने कहा चलो, मैंने घर वालों को कहा आप लोगों ने सही से देखा था? उन्होंने कहा हम उस टाइम परेशानी में थे, होश था, लेकिन हमारे ख्याल से भी लड़की थी। जो मेरी बहन थी वो उस नॉर्मल उस पोजीशन में नहीं थी कि बता सके। जब मैडम 1-2 दिन गुजरे, मैंने फिर नर्सरी वालों को कॉल भी की दोनों को। जब 1-2 दिन गुजरे, वो उसको मैंने डॉक्टर के पास ले गया। उधर डॉक्टर ने कहा मैंने तो इसका अल्ट्रासाउंड भी किया था, इसे बच्ची बताई थी, मैंने इसको बच्ची बताई थी। फिर उसने कहा हाँ मुझे डॉक्टर साहब ने बच्ची बताई थी, तो बच्ची क्यों नहीं है? तब मैंने कहा चलो मैं जो ना मसला नहीं, मैं पूछ लेता हूँ कोई मसला CLF वालों ने या सेवा वालों ने अपने पास नोट तो किया होगा। पहले मैं गया सेवल जो गैनी वार्ड है वहाँ पे चला गया। उन्होंने कहा हमारे से यहाँ पे वैक्सीन नहीं हुई है ना, तो हमारे पास एंट्री नहीं हुई इसकी, आप CLF ले गए, CLF चले जाओ। मैं CLF चला गया, उन्होंने मुझे जब दी उसमें फ़ीमेल लिखा था। इनसे पहले ही मैं रात को उधर चला गया था, लेकिन उन्होंने जो है ना अच्छा, वहाँ आपको बच्ची बताई गई। आपको अब 5 दिन बाद जब कॉल आती है तो क्या कॉल आती है? मैं तो हर दिन आता हूँ, उसने हर दिन बोला, मैं तो हर दिन देखने के लिए आता हूँ। कल रात को उसने खुद कॉल किया कि आ जाओ, सुबह अपनी बच्ची ले जाओ, आपका बच्चा सेहतमंद है, बस ले जाओ। जब आपको कॉल आई कि आपकी बच्ची सेहतमंद है तो आप को अजीब सा नहीं लगा? बच्चे का बोला है, बच्चे का क्या का बच्चा सेहतमंद है, आप ले जाओ, आ जाओ, सुबह ले जाओ। हम लोग घर से गाड़ी लेके आए हुए थे। जब हम लोग पहुँचे ये लोग भी खड़े थे। जब हम लोगों ने बोला, उसने बोला कि तुम लोगों को तो बच्ची, तो मैंने बोला बच्ची किधर है? तो मेरे पहले दिन से मैंने क्या बोला है बताने, वो बोल रहे कि नहीं आप लोगों की तो बच्ची है। बस उसी वजह से फिर ये सिलसिला शुरू हो। तो अब जब आपको पता चला, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि एक बड़ा अफसोसनाक अमल है और बड़ी अफसोस की बात है कि वो बच्चा जो जिसके हवाले से बच्चा इनके हवाले किया गया, और ये खबरें चल रही हैं कि 5 दिन में बच्चा बच्ची बदल गया, तो वो फौत हो चुका है, तो इस अमल को आप किस तरह से देखते हैं? एक ऐसी बेएहतियाती नर्सरी की तरफ से की गई, और इस वक्त आपका बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं। वो वाला बच्चा अगर हमारा होता तो फिर भी हम लोग बोलते हैं वो भी हमारा नहीं है। तो मसला ये कि वो हमारा होता फिर हम लोग बोलते थे कि सही हो तो इसका किस तरह से, मतलब आप कैसे कह सकते हैं? कोई सबूत, कोई चीज़ें? हमारे साथ सब कुछ है, तस्वीरें, वीडियो, सब कुछ बड़े। मैंने तुम्हें तो आ रहा हर दिन आता था, एक दिन तुम्हें नहीं कि एक दिन बस में आए, बाकी दिनों में नहीं है। आप अपने बच्चे की पहले दिन से वीडियो और तस्वीरें लेते रहे? सब कुछ मेरे साथ पड़े। और अब जो बच्चा फौत हुआ, जिन्हें इन्होंने तदफीन की, उसका वीडियो भी इन लोगों ने जब मुझे बेचा है, उसमें जिसको भी दिखा दो वो बोलेगा कि ये नहीं है। मतलब उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि इस वक्त एक नहीं दो जो बाप हैं वो दोनों के दोनों परेशान हैं। एक को बताया जा रहा है कि आपका बच्चा फ़ौत हो चुका है, जबकि दूसरे को बताया गया कि आपका बेटा था और बेटा फ़ौत हो गया, और बेटी भी उन्हें नहीं दी जा रही। जबकि अब एक तीसरा सिलसिला जो है वो सामने आ रहा है कि बच्चे के वालिद कहते हैं कि पहले दिन से मैं तस्वीर खींच रहा हूँ और मेरे पास मेरे बच्चे की तस्वीर मौजूद है, लेकिन जो मोहम्मद आज़म को दिया गया बच्चा है उसकी वीडियो और तस्वीरें टोटली चेंज हैं। फिर वो बच्चा निज़ामुद्दीन का कहाँ गया, जो अल-शफ़ा अस्पताल जो निजी नर्सरी है, निजी नर्सरी में दाखिल किया गया था, वो बच्चा कहाँ गया? मुअम्मा बन चुका है। इस वक्त बच्ची कहाँ है जो नर्सरी में थी? वो नर्सरी में, वो अभी तक नर्सरी में, क्या कंडीशन है उसकी? वो सही है, ठीक ठाक है। आप ये बताएं कि बच्ची तो नर्सरी में है और आपको एक गलत बच्चा दे दिया गया, तो आप क्या मुतालबा करते हैं कि मेरी बच्ची मेरे हवाले की जाए? बिल्कुल मैम, हम तो मतलब इसीलिए तो मैम हम आए थे ना, इसलिए तो हम आए थे कि हमारी बच्ची है, तो कहाँ है हमारी बच्ची? हमें बच्चा किसका दे दिए? जो बच्चा दिए ये किसका है? अगर हमारी बच्ची तो हमारी बच्ची किधर है? हम तो बच्ची का हवाले से क्या कहेंगे नर्सरी की जो गफलत बरती गई है? मैम बस 3rd क्लास इनकी जो है ना वो है, इन्होंने ना कोई इनका रिकॉर्ड है, ना कोई फाइल्स है, कैमरे रात को इन्होंने खोले, हमें थोड़ी सी वीडियो दिखाई, लेकिन सुबह जब ये भाई लोग भी आ गए, इनको बोलता है नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वीडियोज़ नहीं है, ये बिल्कुल ये फ्रॉड है इनका, ये लोग सारा फ्रॉड कर रहे हैं। इन्हें बोल रहे हैं कि हम ले गए बच्चा, हम जो सबूत दिखा रहे हैं कि हम ये बच्चा ले गए, ये भाई बोलते हैं हम ये बच्चा हमारा नहीं है। हालाँकि इनके जो ब्लड ग्रुप्स में भी बहुत फ़र्क आ रहा है। आप क्या मुतालबा करते हैं? हम तो मैम अपनी बच्ची का मुताबिक करते हैं। आप बताइए कि आपका क्या मुतालबा है? मेरा मतलब है कि मुझे अपना बच्चा मिल जाए। अगर ये किसी भी मतलब सूरत में बच्चा नहीं देते आपको, और उसी बच्चे को जिसकी वफ़ात हो गई है उसी को आपका बच्चा डिक्लेयर करते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या आपका जो आगे लाए अमल होगा? वो तो DNA वगैरह सबसे पता चल जाएगा। अगर उसमें तो ये बच्चा भी मेरा नहीं निकला फिर तो इस वक्त क्या पुलिस की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई है कि कोई कब्र कुशाई होगी या कोई सिलसिला? कुछ वो करेंगे सब कुछ। क्या अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? तो अभी तक तो हम लोगों का डिटेल ले रही थी, अभी इसके बाद तो अब ये हमारे साथ इनके एक रिश्तेदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए, पुलिस की क्या कार्रवाई है? अभी SHO साहब ने FIR भी कटवाया है और DNA का भी बोला है और कब्र कुशाई का भी बोला है। इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं।
जो निजी ये एक नर्सरी थी, इसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए? इतनी बड़ी गफलत कि एक नहीं, दो नहीं, अब तो 3-3 बच्चों का सिलसिला बन रहा है। ये नर्सरी वाले, मुझे ऐसा लगता है नहीं इनका कोई लाइसेंस है। जिस डॉक्टर का नाम लेडी डॉक्टर का नाम ले रहे हैं वो भी इनके साथ नहीं, अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ भी इनका सिस्टम सही नहीं था। न उसका जो ये लोग इंदराज करते हैं, जो शीशे का नंबर होता है, न उसके साथ नंबर लगाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते। बस सिर्फ ऐसे जब भी हम लोग वो जो सारा वीडियो कैमरे का सिस्टम था वो सारा उन्होंने ख़त्म किया था। इस वक्त आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हैं? इंशाल्लाह हम लोग मुतमईन हैं। SHO साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, बहुत हमारे साथ खड़े। इंशाल्लाह ताला कल भी बुलाया है, तो कल इंशाल्लाह ताला जो आगे जो भी लाइमल होगा वो इंशाल्लाह में। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? 2 बंदों का गिरफ्तारी हुआ है और अभी तक नहीं हुआ है। 1-2 बंदे और है वो भी गिरफ्तार होएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि इस वक्त जो अहले खाना हैं वो परेशानी के आलम में हैं और इस सर्दी में भी वो खड़े हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके हवाले किए जाएं, क्योंकि जो निजी नर्सरी है उसमें जिस तरह से वाक़या पेश आया, पहले तो ये सूरत हाल सामने आ रही थी कि 5 दिन के अंदर जो बच्चा है वो बच्ची में बदल गया, लेकिन अब जो बच्चे के वालिद हैं निज़ामुद्दीन, वो यही बता रहे हैं कि उनके पास एक दिन की वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं और उसमें जो बच्चा नज़र आ रहा है, जो बच्चा फौत हो गया, जिसकी बारे में बताया गया नर्सरी की जानिब से कि फौत हुआ, और वो बच्चा जिस बच्ची के वालिद के हवाले किया गया, उनकी तस्वीरें आपस में नहीं मिलती हैं, जिस पर पुलिस की जानिब से इस निजी नर्सरी में काम करने वाले लोगों के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और कब्र कुशाई करने के बाद DNA किया जाएगा, जिसके बाद जो दोनों यहाँ पर वालिद खड़े हैं उनके DNA से मैच किया जाएगा, बच्ची के DNA किए जाएंगे, वो मैच किए जाएंगे और जिसकी बच्ची है उसके हवाले की जाएगी, जबकि जो बच्चा फौत हो चुका है उसके हवाले से भी पता चलेगा कि आया क्या वो निज़ामुद्दीन का बेटा है या नहीं, और अगर निज़ामुद्दीन का बेटा नहीं है तो निज़ामुद्दीन का बेटा फिर कहाँ चला गया। ऐसी नर्सरियाँ बेशुमार कोयटा में मौजूद हैं। सिविल अस्पताल कोयटा में तमाम तर सहूलियात के दावे हुकूमत की जानिब से तो किए जाते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद ना होने की वजह से वालिदैन को दर दर की ठोकरें जो हैं वो खानी पड़ रही हैं और वो निजी नर्सरियों में जाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल करते हैं, जिसके बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। वो नर्सरियाँ कौन चला रहा है, आया वो नर्सरियाँ रजिस्टर्ड हैं या नहीं, ये पूछने वाला कोई नहीं है। सिविल अस्पताल के सामने हम बहुत सी ऐसी नर्सरियाँ देख रहे हैं, नर्सरियों के साथ साथ ब्लड बैंक हम वहाँ पर देख रहे हैं और कई ऐसे मेडिकल्स भी हम वहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर अद्वियात पेरेंट्स को बाहर जाकर खरीदनी पड़ती हैं, अस्पतालों से कोई भी सहूलत नहीं मिलती, लेकिन हुकूमत अपने दावे करते हुए नहीं थकती। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन दोनों वालिदैन को जो है वो मुतमईन करें और किसी भी तरह जो है इनके बच्चों को इन्हें बाहिफाजत दिया जाए, जिस पर वालिदैन का कहना है कि वो पुलिस से तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी अपनी कारकर्दगी दिखाए और वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो नर्सरी के मालकान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी करे। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।